سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے جعلی بینک اکاؤنٹس کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم دے دیا۔ مزید تفصیلات کیا ہیں؟ امانت گشکوری ہمارے ساتھ ہے۔ امانت بتائے گا اس حکم کے مطابق۔ جی بالکل، سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے آج بڑا فیصلہ سنایا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے جعلی بینک اکاؤنٹ کیس کا تحریری جو فیصلہ ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ 25 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے یہ فیصلہ تحریر کیا ہے اور فیصلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا نام ای سی ایل سے نکالا جائے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے یہ حکم جاری کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مراد علی شاہ کا نام ای سی ایل میں ڈالنے سے ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، ان کے لیے نقل و حمل جو ہے ان میں رکاوٹ پیدا ہوگی اور ان کے لیے دیگر مسائل پیدا ہوں گے۔ ان کا نام فوری طور پر نکالا جائے، بلاول بھٹو زرداری اور مراد علی شاہ کا نام ای سی ایل سے نکالا جائے۔ اور فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جے آئی ٹی اگر انہوں نے تحقیقات اگر ان کی رہتی ہیں تو وہ مکمل کرے اور اپنی تحقیقاتی رپورٹ نیب کے حوالے کرے۔ نیب اب مزید تحقیقات کرے گی جعلی بینک اکاؤنٹس کیس کی، اور نیب کو یہ حکم دیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کہ ہر 15 دن کے اندر پیش رفت رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائی جائے نیب کی جانب سے، اور نیب مستند جو ان کے ڈی جی ہیں وہ اس کی تحقیقات کریں، اور اگر جن لوگوں کے نام شامل ہیں جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں اگر ان کے خلاف جرم ان کا اگر بنتا ہے تو ریفرنس دائر کیا جائے، اور ریفرنس نیب اسلام آباد نیب کی جو اسلام آباد کورٹ ہے اس میں ریفرنس دائر کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو اس بارے میں نیب کو ہدایات جاری کر دی گئی۔ بہت شکریہ امانت گشکوری، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور اہم بیان نیب کی جانب سے، جس کا کہنا ہے کہ کسی کی خواہش پر آصف علی زرداری، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور فریال تالپور کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ نیب کو سپریم کورٹ کے فیصلے کی مصدقہ کاپی موصول نہیں ہوئی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں قانون اپنا راستہ خود بنائے گا۔ نیب نے ضمن میں سست روی کے تاثر کو بھی یکسر مسترد کر دیا ہے۔ نیب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کسی کی خواہش پر آصف علی زرداری، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور فریال تالپور کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ کہا یہ گیا کہ نیب کو سپریم کورٹ کے فیصلے کی مصدقہ کاپی موصول نہیں ہوئی ہے۔ اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو کا نام ای سی ایل میں عجلت میں ڈالا گیا۔ انہوں نے میثاق جمہوریت کی حمایت بھی کر دی۔ کہتے ہیں شہباز شریف کو چیئرمین پی اے سی بنانے میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ شہر اقتدار کا موسم بدلا، نہ ہوا بدلی، لیکن پی ٹی آئی کے اہم رہنما شاہ محمود قریشی بدلے نظر آئے۔ ایک تیر میں دو شکار کر ڈالے۔ پہلے کہا وہ ذاتی طور پر بلاول بھٹو کا نام اس طریقے سے ای سی ایل میں ڈالنے کے حق میں نہیں تھے۔ میری رائے میں اجلت سے کام نہیں لینا چاہیے تھا، پہلے بھی اجلت سے کام نہیں لینا چاہیے تھا، اور 172 کو یکمشت میں سمجھتا ہوں میری رائے میں اجلت میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ شاہ محمود قریشی نے بات یہی ختم نہیں کی، بلکہ اس میں میثاق جمہوریت کی بھی حمایت کر دی، جس کو تحریک انصاف ہمیشہ تنقید کا نشانہ بناتی رہی ہے۔ کہا حکومت اور اپوزیشن مل کر ملک چلائیں۔ میں یہ ریکارڈ میں کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سے اختلافات کے باوجود میں نے اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی پارٹی کے اندر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں لیڈر آف دی اپوزیشن کے حق کو تسلیم کیا اور بات کی کہ ماننا چاہیے۔ اور جیسے کل گرینڈ الائنس کی بات ہوئی اور اس میں کہا کہ ہم نے ڈیموکریٹک رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کی ہے، ایک نئے چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کی جا رہی ہے، تو اس نئے چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر یہ سب روایات شامل ہیں، ہاؤس کی کارروائی اس میں شامل ہے، ہمارے رویے شامل ہیں، ہماری بردباری اس میں شامل ہے، ہمارا حوصلہ اس میں شامل ہے، ہمارا باہمی احترام اس میں شامل ہے۔ قائد حزب اختلاف بھی تشریف لے آئے ہیں اور ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں عرض کروں گا کہ یہاں ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور یہاں بہت سے حضرات تشریف فرما ہے جو بڑے تجربہ کار ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے پارٹی قیادت کی مخالفت کے باوجود شہباز شریف کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیشن بنانے میں اپنے کردار پر بھی ایوان میں خوب داد سمیٹی۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایوان کے اخراجات اور اپوزیشن کے واک آؤٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ خواجہ آصف نے 24 گھنٹے میں حساب برابر کر دیا۔ ایک ٹویٹ کر کے پوچھا کہ آپ اسمبلی تو آتے نہیں مگر تنخواہ پوری لیتے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ اسی بارے میں یہ رپورٹ دیکھیے۔ ہائے ہائے، وقت بھی کتنی ظالم چیز ہے۔
खुद को दोहराता है। कल कप्तान जो दूसरों को कहते थे, आज वही बोई हुई फसल वजीर आजम इमरान खान काट रहे हैं। उन्होंने अरबों रुपए के खर्चात से होने वाले पार्लियामेंट के इजलास से अपोजिशन के वॉकआउट का जिक्र क्या किया, हर कोई इन्हें माजी याद दिलाने लगा। माजी करीब का एक सफा खोला है नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने। उनका कहना था कि मौसूफ धरने के दिनों में बाकायदगी से तनख्वाह वसूल करते थे। तमाम अरकान असम्बली ने सैलाब ज़दगान के लिए चंदा दिया, मगर आपको तौफीक न हुई, खुद दुनिया से चंदा मांग रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि असम्बली 6 माह से अपने वजीर आजम का इंतजार कर रही है, अपने गिरेबान में भी झांक लेना चाहिए। जो ख्वाजा आसिफ ने कहा, भला ऐसा क्या गलत कहा जो कल आप कहते थे वो आज उन्होंने कहा, हिसाब बराबर। अवाम बिजली, गैस और पानी जैसी बुनियादी सहूलियात जिंदगी से महरूम हैं, लेकिन वफाकी वज़रा पार्लियामेंट में चैम्बर्स ना मिलने पर बरहम हैं। वज़रा ने शहबाज शरीफ से एक चैम्बर खाली करने का मुतालबा कर दिया और फैसल वाडा ने तो हद ही पार कर दी। आप भी देखिए। अवाम गुर्बत महंगाई के हाथों चीखे मार रही है, तो क्या हुआ, वज़रा भी चीखे मार रहे हैं। बड़ी ज़रूरत होती है क्योंकि आप बार बार ऑफिस जा, मैं उठ के जा रहा हूँ असेंबली का सेशन छोड़ के ऑफिस के अंदर, लेकिन यहाँ ऑक्यूपेशन पहले से ऑक्यूपाई कर चुके हैं, उसमें मोनोपोली होगी। ज़रूरत तो है लेकिन अब लड़ तो नहीं सकते। अवाम की चीखें बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए है, जबकि वज़रा की चीखें पुरतायुश कमरों के लिए, जिन्हें पार्लिमानी जुबान में चैम्बर कहते हैं। वज़रा इन चैम्बरों के लिए इतने उतावले हो रहे हैं कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से चैम्बर वापस लेने का मुतालबा भी बाआवाज़े बुलंद कर रहे हैं। एक मिनिस्टर चैम्बर नहीं ले सकता और स्पीकर साहब एक मिनिस्टर को चैम्बर नहीं दे सकते हैं, वो मिनिस्टर आवाम के लिए क्या खिदमत करके महकमा कैसे चलाएगा वो। आइए अब हम आपको बताएं कि चैम्बर होता क्या है। मिनिस्टर चैम्बर में 2 स्टाफ के कमरे, किचन, अटैच बाथ और ऐवान की कार्रवाई सुनने के लिए रेडियो और टीवी की सहूलियात भी मौजूद होती हैं। वफाकी वजीर फैसल वाडा तो शहबाज शरीफ से कुछ ज्यादा ही खफा दिखाई देते हैं। उन्होंने तो अपोजिशन लीडर से सारे ही चैम्बर वापस लेने का सोच रखा है। इस वक्त 29 में से 24 चैम्बर पहले ही वफाकी वज़रा और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के ज़ेरे इस्तेमाल हैं। वज़रा का ख्याल है कि शहबाज शरीफ एक चैम्बर खाली करें तो इसके साथ मौजूद हाल मिलाकर नए चैम्बर बनाए जा सकते हैं। और खबर आपको देंगे, साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर का पीछा करने वालों की फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे दानियाल सैयद हमारे साथ है। दानियाल बताएगा फुटेज मौसूल हो गई है, क्या देखा जा सकता है इसमें? जी बिल्कुल, कराची के इलाके डिफेंस खयाबान मुहाफिज स्ट्रीट 26 पर 9 जनवरी को ये वाक़या पेश आया था। एक वाइट रंग की करोला गाड़ी थी जिसने साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर को हिरासत करने की कोशिश की थी। मुकदमा दर्ज है। वाक़े की जो सीसीटीवी फुटेज है वो 24 न्यूज़ मंजर आम पर लेकर आया है। इस सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि सबसे पहले जो साबिक गवर्नर सिंध का घर है, उनके घर से पहले उनका बेटा निकलता है, सबसे बड़ा बेटा जो है एहसन। उसके चंद लम्हों बाद गवर्नर सिंध जो है, साबिक गवर्नर सिंध, वो अपने घर से निकलते हैं। उनके बेटे का भी पीछा करती दिखाई दे रही है ये वाइट करोला गाड़ी। और जब साबिक गवर्नर सिंध अपने घर से निकलते हैं, अपने भाई के घर जाते हैं और चंद ही लम्हों में अपने भाई के घर से जब वापस अपने घर की तरफ आ रहे होते हैं तो इस वाइट करोला गाड़ी को साबिक गवर्नर सिंध की गाड़ी का पीछा करते हुए भी सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है। ताहम फुटेज जो है वो साबिक गवर्नर सिंध ने आला हुकाम को, पुलिस के आला हुकाम को जो है वो दे दिए, लेकिन ताहम फुटेज जो है वो मंजर आम पर आ गई है, लेकिन मुल्जमान अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके। ठीक है दानियाल, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। वजारत खजाना की अफसर के घर से 13 साला मुलाजमा पुरस्कार तौर पर लापता हो गई। बच्ची की वालिदा ने खातून सेक्शन ऑफिसर के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज करा दिया। मां ने दुहाई दी है कि 6 माह से नहीं बताया जा रहा कि मेरी बेटी कहां पर है। जी मेरा नाम रजिया बीबी है।
आ मेरी आशा बेटी है जिहड़ी मेरे कोल तस्वीर है। ये नासर साहब ने खड़ी सी मेरे कोल अपनी धी को इस्लामाबाद भेजी है नम कोल। उत्थे की है जो पढ़दी है ठीक ठाक, जिन्नी बार मंगी है मैनू उस बच्ची नहीं दिती। हुण बच्ची मेरी पता नहीं मार छड़ी गायब की कीता। मैं थाने रबड़ दर्ज भी करवाई है, मेरी वो नहीं सुनन डे, पता नहीं उहदे नाल मिल गए ने की कीता। ते मेरा तरला है मैनू ते भाई मैं गरीब मस्कीन मेरी ये सुनन, मेरी बच्ची नहीं वापस होन डई। ते ए वे इमरान खान के ते सुप्रीम कोर्ट मेरा तरला है मैनू ते मेरी गरीब दी वे सुनन, मैनू नहीं वो बच्ची देन मता। हम मामले की बात करेंगे। विफाकी हुकूमत के लिए हज पॉलिसी तश्कील देना दर्द-ए-सर बन गया है। महंगे हज को कैसे सस्ता बनाया जाए, पीटीआई हुकूमत ने सर जोड़ लिए। मज़ीद तफसीलात क्या हैं? गौहर महसूद हमारे साथ है। तो गौहर, क्या इक़दाम किए जाएंगे? जी बिल्कुल, हज पॉलिसी 2019 हुकूमत के लिए दर्द-ए-सर बन चुकी है। कल काबीना के इजलास में भी इस हवाले से हज पॉलिसी को एजेंडे में शामिल नहीं किया गया है। इस हवाले से ये बताया जा रहा है कि पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर को इस हवाले से एतमाद में लिया जाएगा, उनको ब्रीफ किया जाएगा, उसके बाद हज पॉलिसी की मंजूरी दी जाएगी। इस बार जो हज है वो महंगा है। गुज़श्ता हुकूमत ने हज जो था उस पर तकरीबन कोई 6 अरब के करीब सब्सिडी दी थी, जबकि इस हवाले से वज़ीर मज़हबी उमूर नूरुल हक कादरी इस बार ये ऐलान कर चुके हैं कि हज पर जो सब्सिडी दी गई थी वो इस बार नहीं दी जाएगी। जबकि डॉलर की कीमत बढ़ने और एयरलाइंस भी इसी हवाले से मुतालबा कर रहे हैं कि उनकी जो किराए हैं उसमें भी इजाफा कर दिया जाए। इसी की बुनियाद पर इस बार जो हज है वो यकीनन बहुत महंगा होगा। तकरीबन 4 लाख तक बता रहे हैं कि हज महंगा होने का अंदाजा लगाया जा रहा है कि हज महंगा होगा। हुकूमत इस हवाले अभी तक फैसला नहीं कर सकी है कि हज पॉलिसी को आवाम के सामने लाया जा सके और इस हवाले से जो तफसीलात है वो आवाम के सामने शेयर कराया जाए। जबकि इस हवाले से वजारत मजहबी उमूर अपने तौर पर भरपूर कोशिश कर रही है, ताहम जो हज महंगा होने जा रहा है उसको सस्ता नहीं कराया जा सकता है। जो सबसे बड़ी वजह बता रहे हैं वो गुज़श्ता हुकूमत की जानिब से जो एक दी गई थी सब्सिडी, वो सब्सिडी वज़ीर मजहबी उमूर की जानिब से खत्म करने की सब्सिडी खत्म हो रही है। बहुत शुक्रिया गौहर महसूद, अपडेट कर रहे थे। और मिनी बजट में नॉन फाइलर्स को रिलीफ मिलने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक एफपीआर ने नॉन फाइलर्स पर गाड़ियों की खरीदारी पर आयद पाबंदी हटाने की तजवीज़ पर गौर शुरू कर दिया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताएगा इस ज़िमन में कौन कौन सी तजावीज़ ज़ेर गौर हैं? जी, मिनी बजट के हवाले से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तजावीज़ तैयार करना शुरू कर दी हैं और ज़राए का ये कहना है कि मिनी बजट में नॉन फाइलर्स को रिलीफ दिए जाने का इम्कान है। एफबीआर के हुकाम का ये कहना है कि मिनी बजट में नॉन फाइलर्स पर गाड़ियों की खरीदारी पर आयद पाबंदी हटाए जाने का इम्कान है, क्योंकि वजारत ख़जाना का ये कहना है कि इस पाबंदी की वजह से एफबीआर का रेवेन्यू कम हो रहा है और गुज़श्ता 6 महीने के दौरान गाड़ियों की फ़रोख्त में तकरीबन 27% तक कमी हुई है। जबकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि ऑटो इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं और उनका रोज़गार भी कम हो रहा है। साथ ही साथ एफबीआर का ये कहना है कि मिनी बजट में जायदादों की खरीदो फरोख्त पर जो पाबंदी है उसको बरकरार रखा जाएगा और इस सिलसिले में ऐसे अफराद जो कि 50 लाख रुपए तक की अपनी जायदाद खरीदते हैं उनके लिए फाइलर होना लाजमी है और वजारत खजाना की ऐसी अभी कोई तजवीज़ नहीं है कि इस वकास अजीम आप। और अब बात करेंगे मौसम की और आपको बताएंगे शहरी हो जाएं तैयार, मूसलाधार बारिश बरसाने वाली हवाएं कल से पाकिस्तान का रुख करेंगी। 18 से 25 जनवरी तक तेज बारिशें होंगी। मरी समेत शुमाली इलाकों में कई फीट बर्फबारी की घंटी बज गई। बारिश और बर्फबारी से लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा रहेगा। खबरदार, होशियार, शहरी सर्दी और बारिश से बचने की तैयारी कर लें, क्योंकि बारिश बरसाने और बर्फबारी वाले बादल कल से पाकिस्तान का रुख करेंगे। लेकिन पाकिस्तानियों को असल सूरत हाल का सामना होगा 18 जनवरी से। इंतजामिया तमाम इंतजामात मुकम्मल कर ले, क्योंकि मुसलसल बारिशों और बर्फबारी से लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात भी हो सकते हैं और महकमे मौसमियात ने इंतजामिया को भी खबरदार कर दिया है। 18 जनवरी से शुरू होने वाला बारिश का ये सिलसिला 25 जनवरी तक जारी रहेगा। इस दौरान कहीं बूंदाबांदी तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल गरजेंगे और बरसेंगे। बारिश के बाद हम कुछ बात कर लेते हैं बर्फबारी की। तो सबसे पहले कुछ जिक्र हो जाए मलका कौसार मरी का, जहां पर बर्फबारी होगी। इसके अलावा दीगर बाला इलाकों जहां पर चित्राल, कालाम,
गिलगित, सवाद, मालम जब्बा और गलियात शामिल हैं। इसके अलावा नारान, कागान, वादी कोयटा, चमन और फाटा के बाला इलाकों में भी कई फीट तक बर्फबारी की पेशगोई की गई है, जिससे सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो जाएगा। सरहदों का दिफा हो या दहशतगर्दों को सबक सिखाने का मार्का, पाक फौज के जवानों और अफसरों ने हमेशा ही सीना तान कर दुश्मन को ललकारा है। हर इम्तिहान में सुरखरू हुए और मुल्क कौम का नाम रोशन किया। इसी बारे में रिपोर्ट देखते हैं। वतन की खातिर जानों का नजराना पेश करने वाले सपूतों का नाम हमेशा जिंदा और जावेद रहेगा, जिन्होंने हर महाज पर वतन का दिफा किया और जानों का नजराना दिया। कोटद्दू के सिपाही मतलूब हुसैन को शहीद हुए 19 बरस बीत गए। उन्होंने सियाचिन के मकाम पर जामे शहादत नोश किया। पाक फौज के हवालदार मोहम्मद हुसैन नाजिर ने वाना में वतन पर जान कुर्बान की। शहीद की 5वीं बरसी अबाई इलाके शक्करगढ़ में मनाई गई। पाक फौज के सिपाही मोहम्मद यूसुफ की 18वीं बरसी पत्तोकी के इलाके सराय मुगल में मनाई गई। वो मुजफ्फराबाद के सरहदी इलाके में दुश्मन से लड़ते हुए 2000 को शहीद हुए। मियांवाली के रिहायशी पाक फौज के सिपाही मोहम्मद अफजल शहीद की 16वीं बरसी मनाई गई। वो 2003 को आजाद कश्मीर में शहीद हुए। दीगर खबरें शामिल करते हैं और कराची से आपको खबर देंगे, जहां पुलिस अफसर की प्रोटोकॉल मोबाइल ने मोटरसाइकिल सवार 3 नौजवानों को कुचल दिया। 22 साल का नौजवान अबरार मौके पर ही दम तोड़ गया। तफसीलात के लिए समर अब्बास की रिपोर्ट देख लेते हैं। कराची में पुलिस मोबाइल की तेज रफ्तारी ने एक नौजवान की जान ले ली। गुज़श्ता रात 3:30 बजे के दरमियान आला पुलिस अफसर के प्रोटोकॉल में शामिल पुलिस मोबाइल ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिसके नतीजे में 22 साला नौजवान इब्रार मौके पर ही दम तोड़ गया। मोटरसाइकिल पर 3 नौजवान सवार थे। हादसे में जख्मी नौजवान को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। SSP साउथ पीर मोहम्मद शाह का कहना है कि मुकदमा दर्ज करेंगे, कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम पता कर रहे हैं कि ये गाड़ी कौन सी थी। इंशाअल्लाह ताला पर्चा अपनी 320 का हो रहा है उनके खिलाफ। दूसरी जाने पुलिस के मुताबिक हादसे में जाबाक और जख्मी होने वाले नौजवान क्लिफ्टन में वाक़या एक रेस्टोरेंट में काम करते थे। समर अब्बास, 24 न्यूज़, कराची। और खबर आपको देंगे, मोटरवे पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का चालान हो गया। चालान तेज रफ्तारी के बायस हुआ। पुलिस के मुताबिक गवर्नर की प्राडो 136 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जा रही थी, जिसकी वजह से चालान किया गया। मोटरवे पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का चालान हो गया। चालान तेज रफ्तारी के बायस हुआ। पुलिस के मुताबिक गवर्नर की प्राडो 136 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जा रही थी, जिसकी वजह से यह चालान किया गया।